Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Hussain speaking. Today I am with another video, and that video is based on a story. Okay, so I am going to explain the summary of the lesson named Chandni from class 7, and this is a coincidence that the lesson number is also 7. Okay, so let's start the summary of the story named Chandni. So it is written by Zakir Hussain. Okay, so this is a story named Chandni written by Dr. Zakir Hussain. In this story, he discussed about a person named Abu Khan who lived in Almora. Abu Khan kept goats as pets. He was very fond of them and gave his goats funny names like Kalua, Mungia or Gujri. During daytime, he took them out for grazing and talked to them as one talked to one's own children. At night, he put a string around each of their necks and kept them in his hut. But his goats did not want to be tied. They wanted to go to the beautiful hills and be free. Very often, one or the other of his goats would break free and ran away to the hills only to get killed by an old wolf who lived in the hills. Abu Khan was very sad. He fed them on the juiciest grass and loved them like his children. Yet his goats ran away. One day, when all his goats had ran away, Abu Khan decided that he would keep goats no more. But he became very lonely. He simply couldn't do without his pets. Soon he bought another goat. This new goat was very young. Abu Khan thought that a young goat would live with him much longer. This goat was snow white in color. It had a pair of red gleaming eyes. He named her Chandni, which means moonlight. She was friendly and affectionate. She lived with Abu Khan for several years. He thought Chandni would never leave him, but he was wrong again. Like other goats, Chandni too wanted to go to the beautiful hills, but the rope around her neck wouldn't let her escape. She felt very sad. She wanted to be free. She stopped eating and listening to Abu Khan's stories. She requested Abu Khan to set her free. Abu Khan was very sad. He did not want Chandni to go away. He requested Chandni to stay with him. Chandni insisted on going. Abu Khan got very angry. He shut Chandni in a hut so that she may not be able to run away. But he forgot to shut the window. Chandni escaped through the window. When Chandni reached the hills, she felt like a child meeting her parents after years of separation. Everything around her was very beautiful. She was very happy. She played on the hills. When a herd of goats asked her to join them, she refused because she wanted to be alone. When it was night, Chandni heard a strange sound coming from the bushes. Chandni felt scared. She feared that it might be the wolf. She did not want to go back to the hut of Abu Khan. She decided to die in an open field rather than live like a prisoner. The wolf came out of the bushes. He and Chandni fought a fierce battle. Chandni fought very bravely. Their struggle went on the whole night. At the end, Chandni was killed. Some birds were sitting on a tree watching the fight. They asked each other, "Who is the winner? Who is the winner?" Most of them said that the wolf was winner, but a wise old bird said that Chandni was the winner. She fought like a brave soldier. So dear students, this was the summary of the lesson named Chandni. So we learn so many lessons from this story also, because we Indians were also, sometimes we were just trying to find out our freedom. But when our country became free in 1947, then now we are living in a very happily
happily, then we are living very happily. So freedom is everything. For getting freedom, if you wanna survive somewhere, so you have to do, करना होगा. अगर क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है और चांदनी यही चाहती थी, इसीलिए अब्बू खां के कहने के बावजूद भी कि ना जाओ, यानी वो सोचता था कि नहीं नहीं, बहुत उसको कहानियां सुनाता था उसकी बहनों की, चूंकि और भी बकरियां थीं. ठीक है, तो आइए फिर से एक बार शुरू से इसी कहानी को, जैसे कि आपने इंग्लिश में सुना, अब इसको हिंदी में इसकी समरी सुनाते हैं. मान लीजिए हिंदी में एकदम आपको एकदम समझ लीजिए शुरू से वो एकदम पैराग्राफ की वाइज रहेगी, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से. ठीक है, तो एक बार अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था. वह अब्बू खां के नाम से प्रसिद्ध था. वह अकेला रहता था, बकरियों को छोड़कर, कुछ बकरियों को छोड़कर, जिनको वह पालतू जानवरों के रूप में रखता था. उसने अपनी बकरियों को मजाकिया नाम दे रखे थे, जैसे कि कलुआ, मुंगिया या गुजरी. वह दिन के समय उन्हें चराने बाहर ले जाता था और उनसे इस तरह बातें करता था जैसे कोई अपने खुद के बच्चों से करता है. रात को वह उनको वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में लाता था और प्रत्येक बकरी के गले में रस्सी डालता था. ठीक है, गरीब अब्बू खां बकरियों के बारे में थोड़ा बदकिस्मत था. प्रायः रात को कोई ना कोई बकरी रस्सी को खींचकर तोड़ती रहती थी और फिर पहाड़ी के पीछे गायब हो जाती. पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियां पेड़ या पुल से बंधे जाने से नफरत करती हैं. वे अपनी आजादी से प्यार करती हैं. अब्बू खां की बकरियां शुद्ध पहाड़ी नस्ल की थीं. वो भी अपनी आजादी से प्यार करती थीं, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे भाग जाती, किसी बूढ़े भेड़िए द्वारा मारी जाती जो उन पहाड़ियों में रहता था. जब भी उसकी कोई बकरी गायब होती, अब्बू खां बड़ा उदास होता. वह समझा नहीं कि क्यों रसदार घास और चने भी जो वह उनको देता था और वह प्यार जो वह उनको देता था, उन बदकिस्मत बकरियों को भेड़ियों के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पा रहा था. क्या ये बकरियां पागल हैं? वह हैरान था. यह उनका आजादी के प्रति प्यार था, परंतु स्वतंत्रता का मतलब संघर्ष, तकलीफ और मृत्यु था. अब्बू खां रहस्य को सुलझा नहीं पाया था. एक दिन जब सभी बकरियां उसको छोड़कर चली गई थीं, अब्बू खां ने कहा, अपने आप से कहा, अब मेरे घर में बकरियां नहीं. मैं कुछ साल और जी सकता हूं, परंतु मैं बिना बकरियों के रहूंगा. तो अभी गरीब बूढ़ा आदमी बेहद अकेला था. वह बिना पालतू जानवरों के काम नहीं चला सकता था. जल्द ही उसने एक जवान बकरी खरीदी. उसने सोचा, एक जवान बकरी मेरे साथ काफी समय रहेगी. वह जल्द ही मेरे साथ प्यार करने लग जाएगी और मेरे भोजन से जो मैं उसे दूंगा, हर रोज वह पहाड़ियों में कभी नहीं जाना चाहेगी. और वह खुशी से हंसा. नई बकरी बहुत सुंदर थी. वह बर्फ की तरह सफेद थी और उसके छोटे से सिर पर 2 छोटे सींग थे और उसकी 2 चमकदार लाल आंखें थीं. उसका व्यवहार दोस्ती भरा था और अब्बू खां की कहानियों को बड़े प्यार से और रुचि के साथ सुनती थी. अब्बू खां उसे चांदनी कहता था, जिसका मतलब है चांद की रोशनी. वह चांदनी को प्यार करता था और उसे अपनी सभी मरी हुई चली गई दोस्तों की कहानी बताता था. कुछ साल बीत गए. चांदनी अभी भी वही थी. अब्बू खां विश्वास करता था कि चांदनी कभी भी स्वतंत्र और ताजा हवा खाने के लिए पहाड़ियों के पीछे नहीं जाएगी. बड़े दुख की बात है, वह फिर से गलती खा गया था. हर सुबह चांदनी पहाड़ियों की चोटियों को धूप में नहाते हुए देखती थी. वो पहाड़ियां कितनी अद्भुत हैं, वह सोचती थी. उनमें बहती हवा कितनी तरोताजा है और उन खेतों में भागना कितना अच्छा होगा. वह पहाड़ियों की तरफ भागी, परंतु तुरंत झटके के साथ रुकना पड़ता उसे. उसके गले में रस्सी उसे जाने नहीं देती. वह उस रस्सी से कितनी नफरत करती थी. उसने हरी घास खाना बंद कर दिया जो अब्बू खां उसके लिए लेकर आया, और ना ही उसकी कहानियों को रुचि और प्यार के साथ सुनती थी. उसने उसकी भूख खो दी. बहुत पतली हो गई और धूप से नहाई हुई पहाड़ी की चोटियों को मूठ से देखती थी. अंत में उसने उसके साथ स्पष्ट बात करने का फैसला किया. प्यारे अब्बू खां, उसने कहा, मुझे पहाड़ियों में जाने दो कृपया. यदि मैं तुम्हारे अहाते में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी. अब्बू खां समझ गया था चांदनी की समस्या को, परंतु इससे वह बहुत उदास हो गया. छोटा मिट्टी का बर्तन जिसमें चांदनी का नाश्ता था उसके हाथ से गिर गया और हजारों टुकड़ों में टूट गया. तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहती हो चांदनी? अब्बू खां ने पूछा. मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया. क्या तुम यहाँ भोजन पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें और अधिक स्वादिष्ट भोजन और अधिक लंबी रस्सी दूंगा. नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों में जाने दो. क्या तुम्हें जोखिम का आभास है जिसमें तुम जा रही हो? तुम जिद्दी जीव.
पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है, वह तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान ने अपनी भरपूर कोशिश की उसे चेतावनी देने की। चांदनी ने उत्तर दिया, भगवान ने मुझे एक जोड़ा सींग दिए हैं, मैं भेड़ियों से लड़ूंगी। भेड़िए से लड़ोगी? वास्तव में? क्या तुम्हारी बहन कलुआ की कहानी भूल गई, जो एक बड़े हिरन के कद की थी? वह पूरी रात भेड़िए से लड़ी, परंतु सुबह मारी गई। अब्बू खान ने 50वीं बार कलुआ की कहानी सुनाई। इन सब के बाद चांदनी के पास एक बात थी कहने के लिए, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अब्बू खान बहुत नाराज हो गया। वह गरजा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज से तुम एक छोटे झोपड़े में रहोगी और स्वतंत्र हाथे में नहीं घूमोगी। यद्यपि तुम एहसान फरामोश हो, पर फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना चाहिए। उसने उसे एक छोटी झोपड़ी में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे की छोटी खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की के द्वारा अपनी आजादी पा ली। चांदनी पहाड़ियों में पहुंच गई। अब चांदनी पहाड़ियों में पहुंच गई। उसे ऐसा लगा कि पुरानी पहाड़ियां उसका स्वागत करने के लिए एक लाइन में खड़ी थीं। उसने उस बालक की तरह महसूस किया जो सालों की जुदाई के बाद अपने माता पिता से मिलता था। जहां भी वह गई, लंबी घास उसे गले लगाने के लिए उठती, फूल उसको खुश करने के लिए मिलते और हवा खत्म न होने वाला गीत गाती। यह सब उसके भूतकाल के अब्बू खां के जेल घर के अहाते से कितना अलग था। यह चांदनी के जीवन में सबसे खुशी का दिन था। उस दिन वह पहाड़ी की घास वाली ढलानों पर घंटों तक खेली। वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली, जिन्होंने उसे उनके झुंड में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। वह अपनी नई आजादी का खुद ही आनंद उठाना चाहती थी, खुद ही मजा लेना चाहती थी। सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया था और जल्द ही घास, फूलों और पेड़ों को अंधेरे ने ढक लिया। हवा चलनी बंद हो गई और चारों तरफ शांति छा गई। बस छोड़कर एक अजीब आवाज को जो पहाड़ियों से आ रही थी। आवाज एक गुर्राने की थी। यह क्या था? यह अब्बू खां की आवाज नहीं थी जो उसे अहाते में बुला रही थी, ना ही यह एक दूसरी बकरी की आवाज थी। फिर चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों में रहता था। उसे डर लगा, क्या उसे अब्बू खां की झोपड़ी में सुरक्षा के लिए जाना चाहिए? नहीं, उसने खुद को ही कहा, खुले मैदान में मृत्यु एक छोटी झोपड़ी की जिंदगी से कहीं अच्छी है। भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया था और चांदनी को लालच से देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कोयले की तरह जल रही थीं। वह जल्दी में नहीं दिखा। वह जानता था कि नई बकरी उसकी थी। भेड़ियों और बकरी ने एक दूसरे को आका। भेड़िया बड़ा और खतरनाक था, जबकि बकरी यद्यपि स्वस्थ थी पर छोटी थी। परंतु छोटा कमजोर नहीं होता। चांदनी अपनी टांगों पर स्थिर खड़ी हो गई, सिर थोड़ा सा झुका हुआ और सींग ताने हुए। वह साहस की एक तस्वीर थी। वह एक बहादुर सिपाही जैसी दिखाई दी, जो एक कपटी दुश्मन जैसी दिखाई देती है। मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, चांदनी ने सोचा। सफलता या असफलता किस्मत या मौके की बात होती है। लड़ाई शुरू हो गई। यह पूरी रात चलती रही। चांद जो लड़ाई को देख रहा था फीका पड़ना शुरू हो गया और अचानक बादलों के पीछे छिप गया। तारे भी एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। एक धुंधली सी रोशनी पूरब की ओर दिखाई दी और सुबह की प्रार्थना की पुकार दूर के गिरजाघर से आई। सूर्य की पहली किरणों ने चांदनी को जमीन पर लेटे हुए देखा। वह पूरी तरह खून से तर थी। भेड़िया थका हुआ और नींद में भरा हुआ उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। पास ही पेड़ों पर पक्षियों की एक बैठक लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रही थी। विजेता कौन है? उनमें से एक ने पूछा। अवश्य ही भेड़िया, उनमें से अधिकतर ने कहा। पास में पक्षियों ने पूछा विजेता कौन है, तो उनमें से एक ने कहा अवश्य भेड़िया है। लेकिन एक बुद्धिमान पक्षी ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया, चांदनी विजेता है। समझे? एक बुद्धिमान पक्षी ने क्या कहा? चांदनी विजेता है। ठीक है, तो इसी जगह से ये कहानी हिंदी में इसकी समरी जो है ये खत्म होती है। तो इस लेसन से बच्चों हमें बहुत सारी नसीहत मिलती है, हासिल होती है कि हमें कभी भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए और आज़ादी का जो लुत्फ होता है वो किसी और चीज़ में नहीं होता है। अगर आप कैद कर दिए जाएं, जिस तरह से अभी कोरोना काल में हम लोग कैद हो गए थे, तो हम लोग अपने सारे मोमेंट्स को हम लोग मिस कर रहे थे। वी वर जस्ट मिसिंग दोज मोमेंट्स, दोज स्कूल मोमेंट्स, दोज इवेंट्स एंड एवरीवेयर एवरीथिंग, मतलब हर जगह हर चीज को हम लोग मिस कर रहे थे। इसीलिए आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और जबकि बताया गया है
तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। आई होप कि यू अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसलिए कि इंग्लिश में भी आपको कहानी बताने की और हिंदी में भी। सो इसको ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे मेरे चैनल हुसैन स्पीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इस तरह से लेसन्स को हम एलॉबरेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे यू ऑल। गुड डे, गुड नाइट, गुड डे।